और केरल के कोल्लम में नीट सेंटर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 3 लड़कियों ने आरोप लगाया है कि एग्जाम में बैठने से पहले उनके इनरवेयर उतरवाए गए। ये मामला रविवार को जब कोल्लम में नीट परीक्षा हो रही थी, उस दौरान 3 छात्राओं के साथ इस तरह के अपमानजनक बर्ताव का मामला सामने आया। इस मामले में लड़कियों ने पुलिस शिकायत की और केस दर्ज हुआ। केरल पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में 5 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने छात्राओं को परीक्षा से पहले इनरवेयर उतारने के लिए मजबूर किया। इसे लेकर आज कोल्लम में कॉलेज के बाहर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। അപ്പം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യമേ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതുപോലെ ഇവിടെ സ്കാനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വിടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം 2 ക്യൂ ആയിട്ട് നിർത്തിയേക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ സാധാരണ ഹുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത അടിവസ്ത്രമിട്ട പിള്ളേരും, പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ലൈനിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഹുക്കുള്ള അടിവസ്ത്രമാണോ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി മാറാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അവിടെ വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം കാണും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂട്ടി കുഴച്ചിട്ടേക്കുക. അപ്പം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളതവിടെ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും ഇതുപോലെ പിള്ളേരെല്ലാം ഭയങ്കര ക്രൗഡഡായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കയറി അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് എൻ്റെത് കിട്ടി. പിന്നെ അവിടെ ഒരു കുട്ടി നിന്ന് കരയുകയും ചെയ്തു. കരഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാണോ എന്തോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു സാറാണോ ആരോന്നും അറിയത്തില്ല, അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ കരയുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകാൻ നേരത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് ഇടിച്ച് കയറിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണ്ട, കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളടുത്ത്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടമായി. അപ്പം പിന്നെ എന്നാലും കുട്ടികളെല്ലാം അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് പോയത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. അപ്പം ഞാനും അതിനകത്ത് കയറി. ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ് അതിനകത്ത്. അപ്പം സ്ഥലം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് പിള്ളേരിങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒട്ടും സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നിന്ന് മാറാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. പിന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ പോയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മുടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഷോളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ മറച്ചിട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എഴുതിയത്. പിന്നെ ബോയ്സിനെയും ഗേൾസിനെയും കൂടെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയത്. അതും ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. लखनऊ पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी। इन चारों कथित आरोपियों से पूछताछ चल रही है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लुलु मॉल को लेकर जो लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में बिना इजाजत नमाज पढ़ने वाले 11 आरोपियों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नोमान बताए गए हैं। चारों युवक लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के रहने वाले हैं। बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पे लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के आधार पर चिन्हित किया गया। उनको जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। एक तरफ जहां यूपी प्रशासन मामले को शांत कराने की कोशिश में है, वहीं हर रोज कोई नया संगठन या धर्मगुरु मॉल के अंदर जाकर पूजा पाठ करने की कोशिश करके मामला फिर बढ़ा देता है। मंगलवार को अयोध्या से आए परमहंस आचार्य ने मॉल के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बात इतनी बढ़ चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आकर के बयान देना पड़ा। लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं।
मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि मॉल के अंदर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं मॉल के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में 4 हिंदूवादी संगठन के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लुलु मॉल का मालिक यूसुफ है एक मुसलमान, तो यह अफवाह फैला दी गई कि लुलु मॉल में काम करने वाले 80% कर्मचारी मुसलमान हैं। सोचिए कि जिसने देश का सबसे बड़ा मॉल बनाया लखनऊ में, उसे ऑफिशियल प्रेस रिलीज देकर के सफाई देनी पड़ी कि नहीं गलत है, यहाँ 80% मुसलमान नहीं 80% से ज्यादा हिंदू काम करते हैं। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जहां पर विकास कार्यों की बात होनी चाहिए, बड़ा मॉल बना है उसकी बात होनी चाहिए, वहां पर चर्चा है वो हिंदू मुसलमान से जुड़े विवाद को लेकर के होती रहती है। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ में, दिल्ली में मोहम्मद मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने पर 3 हफ्ते पहले कड़ी फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बार नुपुर शर्मा पर कुछ नरम दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नुपुर को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर के खिलाफ किसी भी मामले में कठोर कार्रवाई नहीं होगी, उनको गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण रहेगा। अगर इसी मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज होती है तो भी ये संरक्षण बरकरार रहेगा। सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से आए एक शख्स का हवाला दिया और तमाम वीडियोस के बारे में भी कोर्ट को बताया। मनिंदर सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पहले के मामलों में भी ऐसी राहत दी है। दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई, फिर पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एफआईआर हुई। इन 9 एफआईआर को रद्द किया जाए, दिल्ली की एफआईआर में जांच आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर से जान को खतरे की घटनाओं पर हलफनामा मांगा है और दिल्ली में मामला चलाने की अर्जी पर केंद्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदि से 10 अगस्त तक जवाब मांगा है। अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देश के हर नागरिक की तरह नुपुर को भी कानूनी उपचार लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या नुपुर की तरह देश के हर नागरिक को ऐसा मौका मिल पाता है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अग्निपथ योजना को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कई दल सवाल पूछ रहे हैं कि अग्निपथ के लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी जाति क्यों पूछी जा रही है। हालांकि इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब ये आया है कि सेना में जाति और धर्म का प्रमाण पत्र पहले से ही मांगा जाता रहा है। सरकार अग्निवीरों की जाति क्यों जानना चाहती है, ये सवाल कई पिछड़े नेता पूछ रहे हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो अग्निपथ को लेकर जारी संशय पर सवाल पूछ रहे हैं। सेना की बहाली में कभी से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब, आखिर इसका उपयोग क्या है? क्योंकि जब इसका सदुपयोग है ही नहीं, मतलब कोई सुविधा होती जात के कारण, तब मांगा जाता, ठीक बात थी, सदुपयोग होता। सदुपयोग नहीं है तो संभव है कि इसका दुरुपयोग हो जाए बाद में। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया है। विवाद बढ़ता देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई दी कि सेना में व्यवस्था पहले से ही है। अग्निपथ के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं जो कह रहा हूं, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। लेकिन सरकार के इस जवाब से पार्टियां संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट कर रहे तेजस्वी यादव ने नया अंदेशा खड़ा कर दिया कि कहीं ये मामला जाति धर्म देखकर 75% लोगों की छटनी का तो नहीं है। आप जैसी पार्टियां भी संतुष्ट नहीं है। जब आप 75% छटनी का नियम लेके आ रहे हैं तो अब जाति पूछने का एक मकसद हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार जाति पूछ के छटनी की योजना बनाएगी, जाति जानकर छटनी करेगी?
दरअसल ये सवाल यहाँ से शुरू हुआ कि जब सेना में आरक्षण नहीं है तो उम्मीदवारों की जाति क्यों पूछी जा रही है। अग्निपथ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला सियासत तक ही नहीं सीमित है, अदालत तक जा चुका है और यह बात सेना के सेहत के लिए अच्छी नहीं। इसलिए जरूरी है कि इस पर जल्द से जल्द लोगों की शंकाएं दूर हो। आखिर इस देश में सेना की एक अलग साख है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में कोरोना और मंकी पॉक्स को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट है, लेकिन इसी बीच बारिश के दौरान स्वाइन फ्लू के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य के 40% मामले मुंबई से हैं और महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से 2 मौतें भी हो चुकी हैं। कोरोना से संभल रहे महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के 38 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 15 यानी कि 40% मामले सिर्फ मुंबई से हैं। इस बीमारी ने बीते साल पूरे राज्य में 2 मरीजों की जान ली थी, तो वहीं इस साल जुलाई तक ही 2 मौतें हो चुकी हैं। कोल्हापुर जिले में ये 2 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। आज कोल्हापुर जिले में स्वाइन फ्लू के 10 रुग्ण उपचार ले रहे हैं। इसमें हातकणंगले, करवीर, कोल्हापुर मनपा और सांगली और कर्नाटक से कोई पेशेंट्स यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसमें से 2 डेथ्स यहाँ हो चुके हैं। कोविड-19 और स्वाइन फ्लू दोनों ही सांस की बीमारियां हैं। बुखार, सुस्ती, छींकना, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और भूख में कमी लक्षणों में शामिल हैं। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए को H1N1 वायरस के नाम से भी जाना जाता है। सुअरों में फैलने वाली ये एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित इंसान या फिर जानवरों के जरिए फैल सकती है। मुंबई में अप्रैल और जून महीने में H1N1 के 2 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन बरसात के साथ ही जुलाई महीने में कुल 11 मामले सामने आ गए हैं। बीते साल शहर में स्वाइन फ्लू के कुल 64 मामले रिपोर्ट हुए थे। मौतें कोई भी नहीं थी। वहीं म्यूटेशन के बाद स्वाइन फ्लू के नए वेरिएंट की आशंका ने भी चिंता बढ़ाई है। भारत के जो मानसून बहुल इलाके हैं उनमें मानसून का पीरियड में ये संख्या बढ़ जाती है, जो कि हर साल देखी जाती है। पिछले 2 सालों से जब कोविड का प्रभाव ज्यादा था, इन्फ्लुएंजा के मामले पूरे विश्व में और अपने देश में और आजू बाजू के देशों में उनकी संख्या घटी थी। शायद यूनिवर्सल मास्किंग, भीड़ का कम होना या फिर कोविड का प्रभाव, इनकी वजह से ये मामले कम हो सकते हैं। लेकिन ये जो मामले हैं वो आमतौर पे ये सीजन में बढ़ते हैं। H1N1 या स्वाइन फ्लू के केसेस में बहुत सारी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। लगभग रोज 2 या 3 पेशेंट जो हम स्क्रीन कर रहे हैं, जिनका टेस्ट कर रहे हैं, वो स्वाइन फ्लू के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं। मुंबई में अन्य मॉनसून रोगों में अब तक गैस्ट्रो के 3,246 मामले, मलेरिया के 1,486 मामले, डेंगू के 156, हेपेटाइटिस के 291 और लेप्टो के 46 मामले सामने आए हैं। बीएमसी ने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को सलाह दी है कि वो रुके हुए यानी कि जमा पानी में न जाएं और अपने आसपास साफ सफाई रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में किस तरह से भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मनाली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान होने की खबरें हैं। ये तस्वीरें मनाली की हैं जो बादलों के कहर को बता रही हैं। बादलों का कहर इतना ज्यादा है कि चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे पर आना जाना बंद है। किन्नौर के कई इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। नाकों में भारी बारिश ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखो फिर से बाढ़ आ गया। और अब अगली खबर कर्नाटक से, जहां के तुमकुरू में एक पोस्टर लगा है कि तोता ढूंढिए इनाम पाइए। इनाम है 50,000 का और जो तोता है वो अफ्रीकी नस्ल का है। पूरी खबर क्या है, निहाल किदवई की इस रिपोर्ट में देखिए। अफ्रीकी मूल का तोता रुस्तम 16 तारीख से लापता है। जिनका ये तोता है वो शहर में पोस्टर लगाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि उसे खोजने में मदद करें। 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इस तोते से हमें काफी अपनापन और लगाव है। अगर आप में से किसी ने भी देखा है तो हमें बताइए। अगर किसी को पता चले और तोता मिल जाए तो हमने उसके लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है।
दरअसल इस जोड़े का मेल तोता 16 तारीख को अचानक लापता हो गया। परिवार वालों को लगता है कि वो उड़ गया। आसपास सभी जगहों पर पहले तलाश किया गया, लेकिन मिला नहीं। सभी लोगों से विनती करती हूँ कि वो लोग अपने अपने घरों की बालकनी, छत पर, खिड़की के आसपास देखें। तोता ढूंढने में हमारी मदद करें। हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर जैसा है। तोते का ये जोड़ा पिछले 2.5 वर्षों से इस परिवार के पास था। अब इसके साथी की तलाश जोर शोर से चल रही है, इनाम की रकम के साथ। तुमकुरू से ब्यूरो इन्फोस के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया।